Hello students, today I am going to teach about tobacco mosaic virus. As its name, it is a viral disease and its a host is a tobacco plant, and mosaic means it causes mosaic symptoms. So its a name indicates three things. One is the name of host, that is a tobacco, and mosaic indicates is the disease symptom produced by this virus, and a virus is itself the causal organism of the disease. And this video I'm going to discuss, I'll be discussing about the structure of this virus, how it replicates, how it multiplies, and what are the symptoms produced by this virus, and how to control this viral disease. What are the control measures of this virus? So first I will tell about the structure of virus. This is a RNA containing virus. As I have told you already, the viruses are the nucleoprotein particles. They are made up of nucleic acid and protein. In some viruses, in addition to nucleoprotein, they are present one additional envelope, or one additional membrane is present, that is known as an envelope, and such kind of viruses are known as a enveloped virus, while in which the envelope is absent, they are a naked viruses. So this TMV virus is basically a naked virus, and it is a RNA containing viruses. This virus contain helical strand of the RNA molecule, and it appear as you can see in the diagram, it it appear as a bundle of rods under the electron microscope. जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये बिल्कुल रॉड लाइक स्ट्रक्चर इसको दिखता है इसका. और एज यू कैन सी हियर, this is a circular this is a helical ring of this RNA molecule which is surrounded by protein coat. ये बिल्कुल आप देख रहे हैं अंगूर के गुच्छे की तरह दिख रहा है प्रोटीन कोट, और जिसको कैप्सिड भी बोलते हैं. एंड दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर. जो प्रोटीन की सब यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? Capsomeres. The protein coat, this is the nucleic acid. The virus is made up of nucleic acid, which is RNA, and this RNA is surrounded by protein coat, which is known as a capsid, and it is made up of capsomeres. And all the subunits called capsomeres are identical. जितने भी इसमें capsomere के subunits हैं सभी identical हैं, and there are about 2130 identical protein subunits present in this viruses. And each rod is about 3000 angstrom in length and 170 angstrom in diameter. And each capsomere, इसकी जो साइज है हर रॉड की, ये कितना है? 300 nanometer in length and 117 nanometer in diameter. And each capsomere consists of long chain of 158 amino acid. आपको पता है कि प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना है. और जो इसके प्रोटीन कोट है जिसे कैप्सिड बोलते हैं, इसकी जो सब यूनिट्स हैं, ये प्रोटीन कोट कैप्सिड किससे बना है? कैप्सोमियर से बना है. और वो हर कैप्सोमियर किस एक 158 अमीनो एसिड की चेन से मिलकर के बना है. इन each capsomere there are about 158 amino acids, and its molecular weight is 18,000. These capsomeres are helically arranged around a central single stranded RNA molecule. जैसा आप इस यहाँ देख रहे हो स्ट्रक्चर में, जैसे ये RNA हेलिक्स की तरह बिल्कुल अरेंज है हेलिकल फॉर्म में, इसी के अराउंड ये जो प्रोटीन कोट है ये भी बिल्कुल हेलिकली ही अरेंज है around the RNA molecule. And the ratio and protein and nucleic acid in this particle is 94.5% to 5.6. ज़्यादातर इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन है, और स्मॉल अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड है. And total length of each rod has about 130 helical. हर रॉड में कितने हेलिक्स हैं? 130. There are about 130 helixes are present, and each helix has about 16.5 protein subunits. So this was all about structure of the TMV.
नाउ हाउ इट रेप्लिकेट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि कोई भी वायरस कैसे किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसे एंटर करना होगा होस्ट बॉडी में। तो यहाँ पे जो एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं, वीरियन बोलते हैं। वीरियन क्या होता है, होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद ये प्रोटीन कोट उसकी डीजनरेट हो जाती है और फिर केवल वहां पे नेकेड आरएनए पार्टिकल बचता है। और ये आरएनए का काम क्या होता है, पहले इसका खुद का सेल्फ रेप्लिकेशन करना। एंड आरएनए डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बट इट यूजेस द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग apparatus ऑफ द होस्ट सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया है, वायरस इज अ obligate parasite. It means it cannot survive without the host. ये होस्ट के बिना सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है, कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं है, इसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं है जहाँ की प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। इसके पास सिर्फ कोडेड इंफॉर्मेशन होती है और इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जिसके थ्रू ये अपने अपने जीन को मल्टीप्लाई, अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई कर सकता है और ये अपने प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। बट इट हैज टू यूज द मशीनरी ऑफ इट्स होस्ट सेल, देयरफॉर इट इज नोन एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट बिकॉज it cannot multiply its nucleic acid, it cannot produce its protein without the help of होस्ट रेप्लिकेशन मशीनरी, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ ऑब्लिगेट। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वाई वायरस इज नोन एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट। सो यू कैन राइट दिस कि दिस वायरसेस कैन नॉट सर्वाइव itself because they are dependent on the machinery of the host cell for their survival, for their replication of their genetic material, for the synthesis of protein. They are entirely dependent on the host cell, that's why they are known as a ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, तो आप ये सबसे पहले क्या करता है, पूरा वीरियन होस्ट सेल के अंदर जाता है, प्रोटीन को डीजनरेट हो जाती है और आरएनए अपना रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपी बना लेता है। अब इस हेलिकल आरएनए के अराउंड प्रोटीन जो कैप्सिड के कैप्सोमियर्स हैं वो अरेंज होना शुरू करते हैं। बिल्कुल आप इस तरीके से देखिए, ये हेलिक्स के चारों तरफ किस तरीके से रिंग की तरह ये कैप्सोमियर्स जो कैप्सिड है ये अरेंज हो रहे हैं। स्लोली वन बाय वन आप देखिए ये अरेंज होते जा रहे हैं। इन दिस वे ये अरेंज ही होते जाते हैं। द कैप्सोमियर्स गेट अरेंज अराउंड आरएनए मॉलिक्यूल। जो भी कैप्सोमियर है वो आरएनए के चारों तरफ बिल्कुल हेलिकल मोड में अरेंज होता जाता है। तो इसके पास it has genetic information for its self assembly, for its protein synthesis, but it uses the machinery of the होस्ट सेल। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन के लिए या इन्फेक्शन के लिए, सबसे पहले तो एंट्री, फिर इसका डीएनए का न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन, इसकी प्रोटीन सिंथेसिस और फिर नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली होने के बाद ये होस्ट सेल से बाहर आ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स रेप्लिकेशन प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ टीएमवी इन्फेक्शन? this is viral infections are always very contagious। जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो हमेशा ही बहुत ही कंटेजियस होते हैं और वो जरा सा भी टच होने पे वो इन्फेक्ट करते हैं। लाइक अगर किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट की डेब्रीज भी, उसका डेड रिमेन्स भी सॉइल में पड़ा है, दैट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द हेल्दी प्लांट। अगर किसी भी तरीके से कोई भी मैकेनिकल मीन्स से टच हो गया, लाइक किसी एग्रीकल्चर टूल से किसी डिजीज प्लांट को टच करके फिर हेल्दी प्लांट को टच कर दिया, तो डिजीज सीधा डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगी। बाय द इट कैन बी transmitted even by rubbing of infected plants over the हेल्दी वन। इसके अलावा इसका एक बायोटिक एजेंट है ट्रांसफर का, कुछ एफिड्स होते हैं जो कि इस वायरस के वेक्टर होते हैं, लाइक माइजस पर्सिकाई, माइजस स्यूडोसोलानी, माइक्रोसिफॉन सोलानी फिफोली, ये बायोटिक एजेंट्स है। अदरवाइज इसके बहुत सारे एबायोटिक और बायोटिक एजेंट है जिसके कारण ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। देयर आर मैकेनिकल मीन्स, देयर आर द बायोटिक मीन्स। Okay, now what are the symptoms of the disease?
The first visible symptom of the disease is the downward curling and distortion of the young apical leaves. सबसे पहले जो apical leaves हैं वो downward curl हो जाती हैं और इनके surface पे as you can see here ये mottling appearance है, ये बिल्कुल दाग दाग से दिख रहे हैं आपको, येलो ग्रीन कलर के स्पॉट्स हैं, इसे मोज़ेक सिम्टम्स बोलते हैं एंड दीज आर द mottling एंड ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके के ब्लिस्टर जैसे एरियाज डेवलप हो जाते हैं. सो यू कैन सी हियर द डिजीज सिम्टम ऑफ दिस ट्यूबरकुलोसिस मोज़ेक virus. Now, how to control the viral disease? As you know, there is no any treatment available till date for the, there is no medicine available till date for the viral disease. Viral disease को control करना बहुत ही मुश्किल होता है. So there are no any chemical solution for treating TMV after it infects your plant. अगर ये किसी पौधे को इन्फेक्ट कर दिया है तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है. तो सबसे बेहतर तरीका होता है लाइक कोई भी वायरल डिजीज चाहे ये ह्यूमन बीइंग को या किसी एनिमल को किसी को भी इन्फेक्ट करता है तो इसका कोई एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. इसका सबसे बड़ा है प्रिवेंशन. आप लो प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस कि वायरस को किस तरीके से वायरस से पौधे को बचाया जा सके. अच्छा, एक ही इसकी खास बात है टीएमवी, जैसा कि मैंने बताया टोबैको मोज़ेक वायरस होस्ट टोबैको है. इट्स नॉट अबाउट कि होस्ट हमेशा टोबैको है. ये किसी भी इसका होस्ट कोई भी हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम टोबैको देयर कैन बी अदर मेंबर्स ऑफ सोलानेसी फैमिली. इट कैन इम्पैक्ट टोमेटो, इट कैन इम्पैक्ट अदर मेंबर्स. एक प्लांट, ये बहुत से प्लांट्स को डैमेज करता है जो कि हमारे किचन गार्डन में यूज होते हैं. तो इट्स नॉट अबाउट कि टोबैको मोज़ेक वायरस हमेशा टोबैको को ही टोबैको प्लांट को ही अटैक करता है. इसके बहुत सारे, सबसे पहले इस वायरस का नाम टोबैको मोज़ेक वायरस इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये टोबैको प्लांट पे ही इसका सर्च हुआ था. टोबैको लीव्स को यूज किया था. मैंने इससे पहले की क्लासेस में बताया था कि किस तरीके से दिमित्री इवानोवस्की और बीजरिंग ने मिलके इसको सर्च किया और स्टैनले ने इस वायरस को आइसोलेट किया. सो व्हाट आर द प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल दिस वायरस? इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉप रोटेशन. लाइक अगर जो सस्केप्टिबल वेराइटी है उसको दूसरे ईयर न लगाया जाए, उसके बदले में कोई और वेराइटी को लगाए ताकि वायरस उसे नए सीजन में इन्फेक्ट नहीं कर सके. रिमूव क्रॉप रेजिड्यू. सपोज पौधे को डिजीज हो गई तो उस क्रॉप को वहां से बिल्कुल रिमूव करके वहां पे सैनिटाइज करो. नो स्मोकिंग पॉलिसी. क्या होता है कि जैसे टोबैको जो भी यूजर्स होते हैं वो मोस्टली से ट्रांसमिट करते हैं कि डिजीज प्लांट का जो भी टोबैको यूज हुआ प्लांट पार्ट से, अब वो टोबैको यूजर अगर जाके कहीं टच कर दिए वो पूरा ट्रांसमिट होगा. तो अगर नो स्मोकिंग पॉलिसी को किया जाए कि अगर जो स्मोकर्स लाइक फ्लिकिंग करते हैं उससे फैलता है, तो अगर इसको अवॉइड किया जाए तो शायद इससे बचा सकता है. गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, क्लीनिंग पे ध्यान दिया जाए. कंट्रोल सस्केप्टिबल वीड्स. जितनी भी सस्केप्टिबल वेराइटीज हैं उनको अवॉइड किया जाए लगाने से और उनको इस तरीके से लगाया जाए कि रेजिस्टेंट और सस्केप्टिबल के कॉम्बिनेशन में क्रॉप को लगाएं. अवॉइड मोनोकल्चर. लाइक ये भी है कि सेम जो सस्केप्टिबल वेराइटी उन्हीं को मत लगाओ, उनके साथ रेजिस्टेंट वेराइटी को लगाओ. डिजीज फ्री प्लांट्स. वी नीड टू बी इंश्योर कि हम जो पौधा लगाने जा रहे हैं वो इस वायरस से फ्री होना चाहिए. एंड वी शुड यूज द रेजिस्टेंट वेराइटी of the plant. So these are the different practices for the prevention of the viruses. So I want to once revise this. This tobacco mosaic virus is the virus that infects members of different Solanaceae family. It's not only the virus for the tobacco plant. ये सिर्फ tobacco को ही नहीं impact करता है, different और भी इसके बहुत सारे host हैं. ये टोमेटो प्लांट को बहुत सीवियरली इम्पैक्ट करता है जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं. और ये जो सिम्टम प्रोड्यूस करता है वो मोज़ेक और मॉटलिंग होता है. डिफरेंट येलो ग्रीन पैचेस बन जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं पत्तियां इससे, और इट लुक्स लाइक बंडल ऑफ रॉड इन द electron microscope. It is a naked helical viruses. It's an RNA. It has RNA containing viruses, and its RNA helical RNA is surrounded by capsid. Or that is made up of 2130 to 2130
capsomeres, and these capsomeres are also helically present around the RNA molecule. And protein concentration is more than 94, and RNA is present in a small amount, and this is the entire replication process I have already described in detail. And its sources of infection are very wide. It may be mechanical means, it may be debris of plant, or it may be there may be some biotic agent also for the transmission of the disease. And these are different control practices. So I think you must be clear about the structure of TMV virus, and how it replicates, and what are the disease symptoms, and how to cure the how to prevent the disease, and how to control the infection from these viruses. For any query and any confusion, you can get back to me through my channel, or you can ask to me in my physical classes, or you can ask me through my WhatsApp link. Thank you so much.